I would like to call Mr. Harish Kumar. Please come on the stage and say something about yourself and today's program. Hello, hello. Hello. So guys, are you excited? Are you excited for this class? बट आप लोगों में उतना जोश नहीं दिख रहा है जितना दिखना चाहिए। आपके में तो और नहीं दिख रहा, वो वाइट भी पीकर पूरा गए हो गए हैं। कौन हो आप? आदमी हो? बट यू आर नॉट लुकिंग लाइक आदमी। Women? Yeah, you are looking. So, before begin this speech, I would like to say one quotation that न जोश न जज्बा तो क्या मजा है जीने में, न जोश न जज्बा तो क्या मजा है जीने में, और अच्छे अच्छे तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। लगेगा लगेगा, चिंता मत करो, ठीक है? नहीं लगेगा तो हम लोग लगाएंगे। So, just listen to me. फर्स्ट एक थिंग बोलूँगा पहले हिंदी में ही कि कोई भी स्टेज में आकर बोलते हैं तो प्लीज़ उनको सुना कीजिए, क्योंकि आप सुनोगे तो आपको सुनेंगे। बिकॉज अ गुड लिसनर बिकम अ गुड स्पीकर। जानते हो ना? तो चाहे कोई भी बोले, जैसे भी बोले, हिंदी इंग्लिश गलत सही, केयरफुली सुना करो, ठीक है? सो थैंक्स। सो लेट मी से समथिंग। I have come here to learn something, so I will learn, and definitely I will teach you something for your career, life, or speaking or English and anything that I can do better for you. So guys, firstly I would like to say about one incident that that happened in my life in my 10th class. No, that's 8th class. Actually, there in English class, that was my first day and introduction was going on. You know that at that time I was just seeing everyone just giving their introduction very fluently, and I was sitting and freezing on my seat that what will I say, because I was not knowing anything about English, that what to say or not. सुन रहे हो ना? मेरे को कुछ नहीं पता था कि मैं क्या बोलूँगा क्या नहीं बोलूँगा, बस सबको सुन रहा था और वो लोग एकदम इंग्लिश में फ्लुएंटली बोल रहे थे, तो मेरा तो बहुत मतलब डर गया था कि अब क्या बोलूँगा। सो जस्ट आई वाज स्टीलिंग वर्ड्स फ्रॉम ईच एंड एवरीवन। मैं सबसे कुछ कुछ वर्ड चुरा रहा था कि वो लोग क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, ठीक है? फिर जैसे तैसे क्या हुआ, आई गेव माई इंट्रोडक्शन, and at that time I was feeling so fear and hesitation, that was every negative emotions was just putting me down. But yet I did that, and after went home, I thought much about English, that English is a very big thing for anyone. मैं सोचा कि इंग्लिश क्या सच में बहुत मतलब कुछ बड़ा बात है किसी के लिए। So I thought let me also learn English, and then I started my journey to learn English. And at that time when I joined one institute, at that time I was so weak in English. You can say that I was zero in field of English, and I started from my zero stage, and I make my failures my ladder. मतलब मैंने अपने जो फेलियर्स है उसको क्या बनाए, सीढ़ी, ठीक है? बट लोग ऐसे होते हैं कि सोचते हैं कि ये हो गया वो हो गया तो नहीं कर पाएंगे, बट जो आपके फेलियर है उसी को आपको क्या बनाना है, सीढ़ी बनाना है, ठीक है? सो व्हेन आई वाज स्पीकिंग इंग्लिश इन मार्केट, इन स्कूल, सो पीपल वर जस्ट
making comments on me. Just look at अंग्रेज का बच्चा आ गया. And many things like that criticize, they were just criticizing me much and much. Yet I didn't think about that because I was knowing that how much important English is in my life. Because if I will go in any interview, so they will not come to help me. What I said, बोला हूँ ना कि सबको केयरफुली सुनना है. Oh man, why are you making noise? Just listen to me. It doesn't matter. But doesn't matter मतलब फिर से नहीं करना, ठीक है? So you know that when I was speaking in market, school and college or anywhere, everybody was just doing criticize on me, on my friends, that look at अंग्रेज का बच्चा आ गया and many things. But I was knowing that how much it's important, because when I will go in any interview or any school or any professional college or field, so they will not come to help me. तो आपको भी यही सोचना है. अगर कोई आपको बोल रहे हैं, कुछ आप पर कमेंट कर रहे हैं, तो आपको उसको नहीं देखना है, आपको अपने आप को देखना है कि आपको क्या जरूरत है, आपको क्या लिए, किसके लिए करना है, ठीक है? अगर if you are investing money here on this spoken English, just get something from here. Whatever sir is telling, just jot it down that all things in your copy and just go in home and follow that all things properly and give your 110% your best. And I like to say one thing also, that if you are coming in stage, just think about yourself that just you are only one man, that is hero. यहाँ आते हुए स्टेज में सोचा करो कि आप ही हीरो हो, बाकी इनको कुछ नहीं आता, तभी बोल पाओगे यहाँ, ठीक है? एंड आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, और यही समय है कुछ करने का, इसे सोना मतलब खोना नहीं है. समय आपका है, या तो सोने में लगा दो या उसको सोना बना दो. तो आपको डिसाइड करना है कि आपका समय है तो आप किस में लगाओगे. आपके पास दो क्या है ऑप्शन है, या तो अपना बेस्ट दो, अपना फ्यूचर बनाओ, फिर एंजॉय करो, या अभी एंजॉय करो, मोबाइल चलाओ, व्हाटएवर यू कैन, वेस्ट योर टाइम ऑन दैट ऑल. And it's your choice. All things just depend on you, that what and how you want to make your life, that to be bright or dark. सब आपके हाथ में है कि आप अपने लाइफ को क्या बनाना चाहते हैं, कैसे बनाना चाहते हैं. And English is main factor in your life that can change your life completely. If I'm standing here, so because of English, if I was not knowing English, I had not knowledge about it, so also I would not be standing here. मैं यहाँ नहीं होता. And you know that now I would like to, मतलब मेरे को इंग्लिश का इम्पोर्टेंट था और ज़्यादा पता है. ना अभी रिसेंटली में एक मतलब चीज़ हुआ, एक सर थे, इंग्लिश वाले सर हैं, मेरे गांव के ही हैं, ठीक है? वो अभी कुछ मतलब बिलासपुर गए थे, कुछ उनका प्रोग्राम था, इंग्लिश वाले सर, बट उनको उतना आता नहीं. तो उस दिन मेरे को सर कॉल किए, बोले हरीश भाई मेरे को इंग्लिश सीखना है, कुछ कैसे करूँ बताओ, ऐसे करके. तो बताया कि वहाँ मतलब जो प्रोग्राम में गया था ना, वहाँ सब लोग ऐसे इंग्लिश बोल रहे थे, वहाँ एकदम फ्लुएंटली, फॉरेनर लोग बोलते हैं, देखे हो ना वैसी. तो उनको बहुत ही मतलब गिल्ट फील हुआ कि मैं क्यों नहीं बोल पा रहा हूँ, ऐसे करके. तो सर मेरे को बोले बहुत कि मेरे को भी सीखना है कैसे भी. तो आपके भी लाइफ में ये इंसिडेंट हो सकता है कि कहीं पर जाओ और आपके साथ ये हो जाए कि सामने वाला एकदम बोल रहा है फ्लुएंटली, बट आपको नहीं आए, कैसा लगेगा ना. तो आपको इंग्लिश सीखने के लिए अपने आप को सेमलेस बनाना है. सेमलेस मतलब जानते हो, बेशर्म बोलते हैं, ठीक है? क्योंकि अगर आप जब तक इसके बारे में नहीं मतलब सेमलेस नहीं बनोगे, तब तक नहीं सीख पाओगे. सब चीज को भूल जाओ, इट इज हेजिटेशन, व्हाटएवर दैट्स नेगेटिव इमोशंस, सबको भूल जाओ. यही चीज आपको इंग्लिश सिखा सकती है.
Just think about your mummy, papa, your family, that how much hard work they are doing for you. मम्मी सुबह से उठकर शाम तक आपके लिए काम करती है, पापा सुबह से गए हैं काम कर रहे हैं आपके लिए, तो अपने लिए नहीं तो उनके लिए कुछ करो, ठीक है। और इंग्लिश ही है जो आपके कंप्लीटली चेंज कर सकता है, ओके। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन सो यू मे प्लीज आस्क। You wanna ask any question that may be helpful for you? ये आपके सीनियर हैं, इनके पास बहुत से एक्सपीरियंस हैं, आप बहुत से चीज़ें अपनी लाइफ में फेस करते होंगे, बहुत से इंग्लिश स्पीकिंग जब आप प्रैक्टिस करते होंगे उसके दौरान। सो क्या कोई क्वेश्चन आपके माइंड में घूमता है जो आप इनसे पूछना चाहते होंगे, वो अभी पूछ सकते हैं। Okay, it doesn't matter. You may ask to sir, okay, and also me. Let me tell something now. If you have entered in this world of English, so we'll have to make yourself very full of confidence, willpower, and whatever positive emotions that will make your journey very easy. And you know that I like to one thing, in starting you will feel very shy or and something will come in your mind that I cannot speak English, my English is not improving, I am speaking but very doing much mistakes. But just don't think that all things. Just come here, make mistakes, because that mistakes will improve slowly. As soon as your speaking will improve, also your mistakes will be very मीन्स कम होते जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे आप इंग्लिश बोलते जाओगे, अभी जैसे भी बने आप यहाँ बोलो, मार्केट में जाओ, नए नए लोगों से मिलो, देखो कि वो क्या बोल रहे हैं। मार्केट में जाओ ग्रुप्स बनाकर, हम लोग क्या करते थे पता है, मान लो 4-5 फ्रेंड्स हो गए, तो हम लोग को इंग्लिश ही बोलना है, तो हम लोग बस में जाते थे, ट्रेन में कहीं चले जाते थे, रायपुर चले जाते थे, बिलासपुर चले जाते थे, ओनली देखने के लिए कि लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू कैसा है इंग्लिश के बारे में। तो हम लोग ऐसे बोलते थे एकदम मतलब फॉरेनर जैसे, ठीक है। उस टाइम में तो लोगों को लगता था कि एकदम मतलब मम्मी लोग को देखते रहते थे, हम लोग बहुत मतलब इंजॉय करते थे। तो आप भी इंग्लिश को इंजॉय करो, ये नहीं कि आ रहे हो जा रहे हो, इंजॉय करो, कन्वर्सेशन करो, एक दूसरे से बात करो, नए नए लोगों से मिलो, मार्केट में जाओ बात करो, ठीक है। एंड आई लाइक टू से वन थिंग अबाउट वर्ड पावर। आपके पास अभी वर्ड पावर नहीं होगा उतना तो बोल भी नहीं पाते होगे, बट ग्रेजुअली विल इम्प्रूव। इट्स डिपेंड ऑन योर रीडिंग, स्पीकिंग। you should mostly do 3 things. That's first speaking, listening and reading, because speaking will improve your all English and your tongue. Reading also will improve your English speaking and word power also. Just read one topic many times and jot it down that all words whatever you can remember, or see that all in your dictionary or mobile, whatever things you have, okay. So maybe that it's enough for today, so thank you. Thank you Mr. Harish for your speech. जैसा कि हरीश ने बताया कि डरने से कुछ नहीं होता, समाज का काम है बोलना, लोग बोलेंगे आप उस चीज को इग्नोर करो। जैसा कि हम इंग्लिश बोलते हैं, हमको शब्द का पता नहीं होता इंग्लिश में, और लोग क्या सोचेंगे इस बात से हम डरते हैं, तो ये हमें नहीं करना चाहिए। क्योंकि लोग तो हमेशा कुछ ना कुछ बोलेंगे, आप अच्छा करो तो भी बोलेंगे, बुरा करो तो भी बोलेंगे। इस सिचुएशन में हमें डरना नहीं है। इसमें मैं 2 लाइन कहना चाहूँगा। मुश्किल में रोना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। मुश्किल में रोना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ, लड़ने वालों के कदमों में जहां होता है।